السلام علیکم. میں سیدہ ربینہ کوثر، اکنامک لیکچرر GDC بودھا. آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لائی ہوں وہ ہے اسٹیٹسٹکس فار اکنامکس، یعنی کہ علم معاشیات کے لیے شماریات. یہ جو ٹاپک ہے یہ BA سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ہے. آئیے اس سے متعلق کیا ہے معلومات حاصل کریں گے. اس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم علم معاشیات کیا ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. علم معاشیات وہ علم ہے جس میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح لوگ یا سماج اپنی لامحدود احتیاجات یا ضروریات کی تکمیل کے لیے جو محدود وسائل پائے گئے ہیں، جن کے متعدد مصرف ہوتے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح صارفین اور اشیاء و خدمات کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ علم ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ کس طرح مختلف اشخاص اور سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان صرف کے لیے ان کی تقسیم کیا ہے عمل میں لائی جاتی ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وسائل بہت محدود ہوتے ہیں، تو ان وسائل کا کس طرح سے بیشترین کیا ہے استعمال کرنا ہے اور تمانیت حاصل کرنا ہے، ان سب کا مطالعہ ہم علم معاشیات میں کرتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے. شماریات ہماری روزمرہ کی زبان میں لفظ اسٹیٹسٹکس دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، واحد اور جمع کے صیغے میں. جمع کے صیغے میں اسٹیٹسٹکس کا مطلب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اعداد و شمار جو باقاعدہ طور پر اکٹھا کیے گئے ہیں. لہٰذا اسٹیٹسٹکس کے سیدھے سادے معنی جمع کے صیغے میں اعداد و شمار، یعنی کہ اعداد و شمار جو ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے، درجہ بندی کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے والی سائنس کو علم شماریات کہا جاتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جمع کے صیغے میں اسٹیٹسٹکس کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق باقاعدہ طور پر اکٹھا کیے ہوئے اعداد و شمار کے ہیں. لہٰذا یہ جو علم شماریات ہے یہ ہمیں معاشی اعداد و شمار کی عددوں کی شکل میں زیادہ سے زیادہ جانکاری کیا ہے فراہم کرتا ہے. تو ایسے معاشی حقائق کو اعداد و شمار یا ڈاٹا کہتے ہیں. ان معاشی مسائل سے متعلق اعداد و شمار یا ڈاٹا جمع کرنے کا مقصد ان مسائل اور ان کے پس پردہ جو مختلف وجوہات ہیں ان کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غریبی کی تکالیف کا تجزیہ کرتے ہیں یا غربت جیسے مسئلے کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو ہم اس کو مختلف شکلوں میں جیسے کہ بے روزگاری، لوگوں کی کم پیداواریت یا پسماندگی یا ٹیکنالوجی کی پسماندگی وغیرہ کے ذریعے کیا ہے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن غریبی کے تجزیے کا حاصل کیا ہے اگر ہم اس کو کم کرنے کے طریقوں کو تلاش نہ کر سکیں؟ اس لیے ہم مسائل کی جانکاری کے ساتھ ان کے سدباب کے طریقوں کی دریافت کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا معاشیات میں ایسے اقدامات پالیسیاں کہلاتی ہیں. اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کسی بھی معاشی مسئلے کا جو تجزیہ ہے اس کے وجوہات سے متعلق حقائق اور اعداد و شمار کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایسی صورت میں کوئی بھی پالیسی مسئلے کے حل کے لیے وضع نہیں کی جا سکتی، تب آپ بڑی حد تک معاشیات اور شماریات کے درمیان کیا ہے بنیادی تعلق کو سمجھ سکتے ہیں. شماریات کیا ہے یا ان شماریات کا تعارف اگر ہم دیکھیں گے، دا ورڈ اسٹیٹسٹکس کنویز اے ویرائٹی آف میننگ ٹو پیپل ان ڈفرینٹ واکس آف لائف. دا ورڈ اسٹیٹسٹکس کمز فرام دا اٹالین ورڈ اسٹیٹسٹا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اسٹیٹسٹکس جو ورڈ آیا ہے وہ اٹالین ورڈ اسٹیٹسٹا سے لیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ جو یعنی کہ جو ورڈ اسٹیٹسٹکس ہے یہ اس کے بہت سارے کیا ہے مفہوم لیے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کیا ہے اس کے بہت سارے کیا ہیں استعمالات ہیں. یوزز اینڈ اپلیکیشن آف دا اسٹیٹسٹکس، یعنی کہ ہماری لائف میں اس کے استعمالات کیا ہیں یا اس کے اپلیکیشن کس طریقے سے ہیں، اس کے بارے میں ہم جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کہ جو شماریات ہوتی ہے یہ شماریات ایک معاشی ماہر کے لیے ایک ناگزیر ہتھیار ہے جو اس کو کسی معاشی مسئلے کو سمجھنے میں کیا ہے بہت ہی زیادہ مدد دیتی ہے. اس کے مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے معیاری اور مقداری حقائق کی مدد سے معاشی مسئلے کے پس پردہ جو وجوہات ہوتے ہیں اس کی تلاش کے لیے کیا ہے کوشش کی جاتی ہے. جب ایک دفعہ مسئلے کی وجوہات کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے حل کے لیے پالیسیوں کی تدوین اور تشکیل کیا ہے آسان ہو جاتی ہے.
दरअसल शुमारियात जो है ये ढेर सारी मालूमात और हक़ाइक़ को चंद आदाद व शुमार और अददी इक़दामात की शक्ल में खुलासा करने में क्या है मदद देती है, जैसे औसत, वेरिएंस वग़ैरह, जिनके ताल्लुक़ से क्या है आप आगे पढ़ेंगे। ये अददी जो इक़दामात है या हक़ाइक़ हैं और आदाद व शुमार को क्या है मुख्तसर करने और ढेर सारे हक़ाइक़ और आदाद व शुमार से मुताल्लिक़ बामाने और भरपूर मालूमात पेश करने में क्या है ये मदद देती है। मुख्तलिफ़ माशी अवामिल के दरमियान ताल्लुक़ को मालूम करने के लिए शुमारियत का इस्तेमाल क्या है अमल में आता है। इंट्रोडक्शन तारीफ देते हैं। द एबिलिटी टू डिस्क्राइब डाटा इन वेरियस वेज हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट। द नीड टू ऑर्गेनाइज masses of information has led to the development of formalized ways to describing data. The purpose of this presentation is to introduce the reader to basic tenets of the statistics. जैसे कि हमने देखा है कि ये जो इल्म शुमारियात होती हैं ये माशी आदाद व शुमार की अददों की शक्ल में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जानकारी फराहम करती है। ऐसे माशी हक़ाइक़ या को भी क्या है आदाद व शुमारे का है डाटा कहते हैं। तो इन माशी मसाइल से मुताल्लिक़ आदाद व शुमार या डाटा जमा करने का मकसद मसाइल को और मसाइल के पीछे जो वजूहात पाए गए हैं उनको समझने में और उसका हल निकालने में क्या है इल्म शुमारियात क्या है बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है। आइए अब हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है या डाटा कलेक्शन किसे कहते हैं। शुमारियात में हक़ाइक़ यानी कि डाटा की जमाबंदी एक अहम रोल क्या है अदा करती है। हक़ाइक़ या डाटा जो पाया जाता है इसकी मुख्तलिफ़ क़िस्मों में क्या है दर्जाबंदी की गई है, जैसे हक़ाइक़ की दर्जाबंदी या जमाबंदी या जमा करने के तरीक़े, इंटरव्यूज़ है या नमूना बंदी है जिसे हम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, सर्वे है या मरदमशुमारी है सेंसस जिसे हम कहते हैं, या डाटा की तंजीम है या हक़ाइक़ या डाटा की पेशकशी वग़ैरह। ये सब क्या है हक़ाइक़ जमा करने के मुख्तलिफ़ क़िस्म के तरीक़े हैं। द फर्स्ट स्टेप इन एनी इन्वेस्टिगेशन इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। जब कभी भी आप किसी भी मौजू से मुताल्लिक़ क्या है तहक़ीक़ात शुरू करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो इक़दाम किया जाता है वो है हक़ाइक़ को जमा करना यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। द डाटा मे बी कलेक्टेड फॉर द होल पॉपुलेशन और फॉर ए सैम्पल ओनली। यहाँ पर जो डाटा लिया जा रहा है या तो पूरी आबादी का लिया जाता है या फिर क्या है वहाँ पर एक सैम्पल एक नमूने के तौर पर क्या है लिया जाता है। इट इज़ मोस्टली कलेक्टेड ऑन द सैम्पल बेसिस। अक्सर दफ़ा क्या है ये सैम्पल के बेस पर ही क्या है लिया जाता है, यानी कि नमूना साजी या नमूना बंदी के तरीक़े पर क्या है इसे जमा किया जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, यानी कि डाटा जो इकट्ठा करना है ये बहुत ही क्या है मुश्किल तरीन काम होता है। द इन्वेस्टिगेटर इज़ द वेल ट्रेंड पर्सन। इसके लिए क्या है जो भी तहक़ीक़कार होता है उसका बहुत ही क्या है तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। हु कलेक्ट्स द स्टैटिस्टिकल डाटा। जो कोई भी शख्स जो कोई भी वहाँ पर क्या है तहक़ीक़कार है जो स्टैटिस्टिकल डाटा को इकट्ठा करना चाह रहा है उसका क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। द रिस्पोंडेंट आर द पर्सनस फ्राम whom द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। यानी कि जहाँ से क्या है वो डाटा को इकट्ठा कर रहा है उसके मुतालिक क्या है बेहतर मालूमात का होना क्या है ज़रूरी है, तभी क्या है ये डाटा हासिल करने में क्या है हमें मदद मिल सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि ग्रामेटिक क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, यानी कि आदाद व शुमार की शक्ल में क्या है पेशकश किस तरीके से की जाती है। तो आदाद व शुमार को पेश करने का ये एक क्या है तीसरा तरीक़ा है। ये तरीक़ा जदवली और बयानबाजी के तरीक़े की बनिस्बत बहुत तेज़ी और जल्दी से हकीकी सूरत हाल की तफ़हीम फ़राहम करता है। यानी इस तरीक़े में हम क्या कर सकते हैं जदवली और बयानबाजी के तरीक़े के ज़रिए से हम क्या है बहुत तेज़ी और बहुत जल्दी से क्या है हकीकी सूरत हाल का हम क्या है जायज़ा ले सकते हैं। आदाद व शुमार की शक्ल के ज़रिए से पेशकशी ये मजहूल ख़यालात की ठोस और आसान और साथ ही साथ क्या है काबिल फ़हम शक्ल में क्या है मौसूर तरीक़े से क्या है अक्कासी की जाती है। अब ये बात दुरुस्त है कि शक्ल या डायग्राम क्या है ज़्यादा सही नहीं होते हैं, लेकिन ये आदाद व शुमार को पेश करने में जदवल के मुकाबले क्या है ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। अब हम देखते हैं कि अशकाल या डायग्राम कितने होते हैं। तो कई अक़साम के अशकाल या डायग्राम होते हैं जो आम तौर पर क्या है इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री शक्ल है या ताद्दुद शक्ल है या हिसाबी खित्तई शक्ल है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिक शक्ल क्या है।
यहाँ पर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में भी देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया गया था कि यहाँ पर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, यानी कि ये जो यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही क्या है दिलकश होती है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर क्या है यानी कि और साथ ही साथ क्या है अट्रैक्टिव के साथ साथ क्या है इम्प्रेसिव, यानी कि इसको देखकर क्या है हम बआसानी क्या है उस मामले तक पहुँचने क्या है कोशिश कर सकते हैं। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही क्या है सीधा साधा तरीका है जिसके ज़रिए से क्या है हम बआसानी क्या है मफ़हूम को समझ सकते हैं, यानी कि काबिल फ़हम क्या है शक्ल पाई जाती है। और इवन ए ले मैन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली एंड इट इज़ शॉर्ट टाइम, यानी कि कम वक्त में कम मुद्दत में क्या है बआसानी क्या है यानी कि इस तरीके से क्या है मजहूल ख़यालात की क्या है ठोस आसान और काबिल फ़हम शक्ल में क्या है मौसर तरीके से अक्कासी की जा सकती है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग कंपेरिजन, यानी कि ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है जो यानी कि अगर कोई यानी कि डाटा वगैरह हैं, ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है मसाइल वगैरह पाए गए हैं, तो उनके दरमियान क्या है मुकाबला करना क्या है बहुत ही आसान हो जाता है इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की वजह से। साथ ही साथ दे सेव मच टाइम एंड एनर्जी, यानी कि इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ज़रिए से क्या है वक्त की बचत होती है और साथ ही साथ क्या है तवानाई की भी क्या है बचत होती है। बहुत कम यानी कि वक्त में हम बआसानी क्या कर सकते हैं मसाइल को बआसानी समझ सकते हैं। डायग्राम लीव गुड विजुअल इम्पैक्ट, यानी कि डायग्राम को देखकर क्या है यानी कि डायग्राम्स जो होते हैं वो लुभाने वाले होते हैं, पुरकशिश होते हैं, तो इससे क्या है मसले को समझने में क्या है आसानी पैदा होती है। और डायग्राम्स गिव ए वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ डाटा, यानी कि हम डाटा को जब यानी कि तहरीर की शक्ल में लिखते हैं तो उसको पढ़ने में समझने में क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है और जहन में क्या है वो बात यानी कि इसकी याददाश्त भी क्या है यानी कि याद दहानी भी क्या है बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब एक डायग्राम की शक्ल में डाटा को पेश किया जाता है तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की वजह से उसको समझने में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है आसानी होती है, क्योंकि डायग्राम क्या करता है बहुत ही क्लियर पिक्चर क्या है डाटा की पेश करता है। आइए अब हम देखते हैं कि बार डायग्राम वगैरह क्या है या सिंपल डायग्राम वगैरह क्या है, उसके बारे में क्या है हम जायज़ा लेते हैं। तो ज्योमेट्री की शक्ल के लिहाज से क्या है बताया गया है कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम जो होते हैं वो ज्योमेट्री शक्ल के क्या है ज़मरे में आते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बार डायग्राम क्या है। तो बार डायग्राम जो होता है वो दरअसल क्या है उसकी 3 किस्में क्या है पाई गई हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल बार डायग्राम क्या है। सिंपल बार डायग्राम यानी कि एक बार या शक्ल एकसा फासले और मसावी चौड़ाई के मुस्ततिल बार के ग्रुप पर क्या है ये मुश्तमिल होती है, जो आदाद व शुमार के हर जमात और हर ज़मरे के लिए क्या है होते हैं। इसको सादा बार डायग्राम क्या है कहते हैं। बार की जो ऊंचाई या लंबाई या आदाद व शुमार की जो ज़खामत और वसत है वो उसको क्या है बताती है। बार का जो निचला हिस्सा होता है वो क़ायदे को इस तरीके से छूता है कि बार की ऊंचाई बार डायग्राम के 0 यूनिट यानी कि यूनिट बार से क्या है वो शुरू होती है, ताकि उनकी आपस में ऊंचाई का क्या है तक़ाबुल बआसानी किया जा सके या जल्दी से आदाद व शुमार की क्या है तफ़हीम हो सके। इसके लिए आदाद व शुमार यानी कि फ्रीक्वेंसी और गैर यानी कि तादाद यानी कि नॉन फ्रीक्वेंसी वाले हर 2 किस्म के क्या है यहाँ पर हो सकते हैं। नॉन फ्रीक्वेंसी वाले जो आदाद व शुमार होते हैं उसमें एक मखसूस खासियत जैसे कि पैदावार या हासिल आबादी है वगैरह होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा के लिए क्या है जो मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों के ज़रिए से क्या है पेशकश क्या है अमल में आती है। बार डायग्राम फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी यानी कि हर 2 किस्म के मुतग़य्यरात और वसफ़ के लिए क्या है मौज़ू होते हैं। आइए अब हम देखते हैं मल्टीपुल बार डायग्राम यानी कि कसीर बार शक्ल डायग्राम। 2 या 2 से ज़्यादा आदाद व शुमार की जोड़ियों यानी कि सेट्स के तक़ाबुल के लिए क्या कहता है कसीर बार डायग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन मुख्तलिफ़ अगर हम सालों की आमदनी ले रहे हैं और ख़र्च या दरामदात और बरामदात की मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ मज़ामीन के निशानात वगैरह अगर हम ले रहे हैं तो हम क्या है बआसानी इस कसीर बार डायग्राम के ज़रिए से क्या है उसकी निशानदेही कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है बताया गया है साल के दौरान 1991, 92, 93, 94, 95 यानी कि यहाँ पर क्या है ईयर्स को क्या है यानी कि सालों को लिया गया है और ये क्या है यहाँ पर बताया गया है कि एक्सपोर्ट किस तरीके के पाए गए हैं और इंपोर्ट किस तरीके से बताया
بتائے گئے ہیں. تو یہاں پر جو یلو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے وہ امپورٹ کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ چیزیں کیا ہے، یعنی کہ درآمد ہو رہی ہیں، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ پستہ کلر میں کیا ہے یہاں پر آیا ہے، جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ کتنے قسم کی کیا ہے برآمدات یا کتنے پرسنٹیج میں کیا ہے یہ مقدار میں کیا ہے یہ برآمدات کیا ہے کی گئی ہیں. تو اس طریقے سے کثیر بار شکل یا ملٹیپل جو بار ڈائیگرام ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ کیا ہے اعداد و شمار کی جوڑیوں کے تقابل کے لیے کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے یہاں پر ہم یہ ملٹیپل کیا ہے بار ڈائیگرام کیا ہے دیکھے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کمپوننٹ بار ڈائیگرام کیا ہے. کمپوننٹ جو بار ڈائیگرام ہوتا ہے دراصل جو ترکیبی جو جز و بار ڈائیگرام چارٹ کو ذیلی ڈائیگرام یعنی کہ سب ڈائیگرام بھی کیا ہے کہتے ہیں. یہ مختلف اجزاء اور حصوں کے تقابل میں اور ان کے اجزاء اور کلی حصوں کے درمیان کیا کرتا ہے تعلق پر روشنی ڈالنے میں بہت ہی کیا ہے کارآمد ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر مختلف اشیاء کی فروخت سے کیا ہے وصولی ہے، یا ایک ہندوستانی خاندان کے گھریلو طریقے یعنی کہ اجزاء میں غذا ہے، کرایہ وغیرہ ہے، یا طبی اخراجات ہے، یا تعلیم ہے، یا بجلی وغیرہ توانائی وغیرہ ہے، اس کے ترکیبی جزو و بار ڈائیگرام کو مناسب طریقے سے کیا ہے یا تو سادہ سایہ دار کیا ہے بنایا جاتا ہے، یا کلر کیا ہے سے کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپوننٹس بار ڈائیگرام کی کیا ہے یہاں پر ایک شکل کیا ہے پیش کی گئی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پائی ڈائیگرام کیا ہوتا ہے یا پائی خاکہ کسے کہتے ہیں. پائی خاکہ یا پائی ڈائیگرام بھی کیا ہے ایک ترکیبی جز یعنی کہ کمپوننٹ ڈائیگرام ہے. اس کو ایک پائی چارٹ بھی کہتے ہیں. لیکن بار ڈائیگرام کے خلاف یہاں ایک دائرہ ہوتا ہے جس کا رقبہ اجزاء میں جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے متناسب طور پر کیا ہے منقسم ہوتا ہے. جس طریقے سے یہاں پر دائرے کو کیا ہے مختلف قسم کے حصوں میں کیا ہے تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر قسم کا حصہ کیا ہے اپنی ایک الگ حصے کی کیا ہے رقبے کی یہاں پر کیا ہے پہچان بتا رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے پائی جو ڈائیگرام ہے وہ ایک پائی چارٹ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بار ڈائیگرام کے کیا ہے برخلاف ہے جو ایک دائرے کی شکل میں پایا گیا ہے، اور جس کا رقبہ کیا کر رہا ہے اجزاء میں جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے متناسب طور پر کیا ہے اسے منقسم کر دیا گیا ہے. تو یہ تھی پائی ڈائیگرام کی شکل. تو اس طریقے سے آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کیا ہے یہاں پر علم شماریات اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یہاں پر ہم اور علم شماریات کا ہماری یعنی کہ ذاتی زندگی میں کس طریقے سے کیا ہے اس کا دخل ہے، اور علم شماریات اور علم معاشیات کس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ پائے گئے ہیں. یہاں پر کلیکشن آف ڈاٹا کس طریقے سے ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈائیگرامیٹک پریزنٹیشن آف ڈاٹا کس طریقے سے ہوتا ہے، اور یعنی کہ جو جامیٹرک جو شکل ہوتی ہے یا جامیٹرک ڈائیگرام جو پائے جاتے ہیں وہ کس طرح کیا ہے زمرے میں آتے ہیں. دراصل جو جامیٹری یا جو شکل ہوتی ہے یا جامیٹرک ڈائیگرام جو ہوتے ہیں وہ بار ڈائیگرام اور پائی ڈائیگرام جو ہوتے ہیں وہ دونوں مل کر ہی کیا ہے جامیٹری شکل کے کیا ہے زمرے میں آتے ہیں. تو بار ڈائیگرام جو 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سادہ بار ڈائیگرام، دوسرا ہے کثیر بار ڈائیگرام، اور تیسرا ہے ترکیبی جزو و بار ڈائیگرام. تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سادہ بار ڈائیگرام جو پایا گیا تھا یعنی کہ سمپل بار ڈائیگرام جو پایا گیا تھا، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، دیکھیے سمپل جو بار ڈائیگرام ہے یہ دیز آر دوز بار ڈائیگرامس which are based on a single set of the numerical data. The different item or the values are represented by the different bars. یہاں پر کیا کیا گیا ہے ایک بار یا ڈائیگرام ایک بار شکل جو ہوتی ہے یا ایک بار ڈائیگرام جو ہوتا ہے یہاں پر یکساں فاصلے اور مساوی چوڑائی کے جو مستطیل بار کے گروپ ہوتے ہیں وہ گروپ پر کیا ہے یہ مشتمل ہوتا ہے، جو اعداد و شمار کے ہر جماعت اور ہر زمرے کے لیے کیا ہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کیا ہے سادہ بار ڈائیگرام کیا ہے کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سمپل بار ڈائیگرام بھی کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹیپل بار ڈائیگرام کیا ہے اور کمپوننٹ بار ڈائیگرام کیا ہے، پائی چارٹ کسے کہتے ہیں. آئیے اب ہم کیا ہے اختتامیہ پر نظر ڈالتے ہیں. تو معاشی پالیسیوں کی تدوین اور فیصلہ سازی میں شماریات کیا ہے ایک اہم رول ادا کرتی ہے.
मसलन आजकल के जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्या है कीमतें वग़ैरह हैं, तो इनकी कीमतों में आलमगीर इज़ाफ़े के पेश नज़र इस बात का फ़ैसला करना क्या है ज़रूरी है कि यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें क्या है मुसलसल क्या है बढ़ रही हैं। तो आजकल के तेल की कीमतों में क्या है आलमगीर इज़ाफ़े के पेश नज़र हमको इस बात का फ़ैसला करना ज़रूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान को साल अगर 2014 में किस कदर तेल दरामद करना चाहिए, और दरामद के फ़ैसले का इन्हिसार तेल की मुतवक्की जो घरेलू पैदावार है और साल 2014 में तेल की इम्कानी तलब पर उसका क्या है इनके इन्हिसार होता है। तो इस तरीक़े से जब कभी भी क्या है हम कीमतों का तयन करते हैं, तो पिछले साल और अब के साल और आने वाले फ्यूचर में किस तरीक़े की हालात पैदा हो सकते हैं और कीमतें किस तरीक़े से होनी चाहिए, इसका क्या है हम यहाँ पर बआसानी क्या है मुशाहिदा कर सकते हैं। तो शुमारियत के इस्तेमाल के बग़ैर ये तयन क्या है नहीं किया जा सकता है। तो तेल की मुतवक्की घरेलू पैदावार हो या तेल की इम्कानी तलब क्या होगी, ये लिहाजा तेल की दरामद का फ़ैसला उस वक्त तक नहीं लिया जा सकता जब तक हमको तेल की हकीकी ज़रूरत का इल्म ना हो। तो ये अहम जानकारी जो हमको तेल की क्या है दरामद के फ़ैसले मदद देती है, ये महज़ आदद व शुमार से ही क्या है हासिल की जा सकती है। जैसा कि हमने डाटा के बारे में भी देखा था कि डाटा या स्टैटिस्टिक्स का मतलब जो होता है वो मक़दारी और मियारी यानी कि दोनों हक़ाइक़ से क्या है इसका ताल्लुक़ है, जिनको माशियात में क्या है इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि माशियात में एक बयान है, जैसे कि हिंदुस्तान में अगर चावल की पैदावार अगर हम 1974 और 75 का अगर हम डाटा लेते हैं तो 39.58 मिलियन टन से बढ़कर क्या है ईयर 1984 से 85 में क्या है जो चावल की पैदावार थी वो 58.64 मिलियन टन तक क्या है पहुंच गई थी। तो ये जो मक़दारी अमर वाक़या है इसे हम क्वांटिटेटिव फैक्ट क्या है कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जैसे साल 1974 से 1975 में जो चावल की जो पैदावार थी वो 39.58 मिलियन टन क्या है पाई गई थी, और यही पैदावार 1974 और 1975 में क्या है जो बढ़ गई थी। ये चावल की पैदावार के स्टैटिस्टिक्स आदाद व शुमार क्या है कहलाते हैं। तो माशियात में क्या है मियारी हक़ाइक़ भी क्या है बहुत अहम रखते हैं। तो मियारी हक़ाइक़ जिसे हम क्वालिटेटिव डाटा भी कहते हैं, ये मियारी क्या है आदाद व शुमार भी क्या है इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मियारी हक़ाइक़ या इत्तलात की अहम ख़ुसूसियात ये होती हैं कि ये किसी शख्स या अशख़ास के ग्रुप की ख़ुसूसियात को बयान करते हैं। ये और बात है कि उनका मियारी यानी कि मक़दारी शक्ल में क्या है तख़मीना क्या है नहीं किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इल्म शुमारियात जो होती हैं ये ढेर सारे मालूमात और हक़ाइक़ को चंद आदाद व शुमार और अददी क्या है इक़दामात की शक्ल में क्या है खुलासा करने में मदद देती है। जैसे हम अभी देखे थे कि इसके ज़रिए से हम औसत मालूम कर सकते हैं, वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। तो ये अददी इक़दामात हक़ाइक़ और आदाद व शुमार को मुख्तसर करने और ढेर सारे हक़ाइक़ और आदाद व शुमार से मुताल्लिक़ क्या है भरपूर मालूमात क्या है फ़राहम करने में ये हमारी मदद करती है। इसके ज़रिए से हम बहुत सारे क्या है माशी अवामिल के दरमियान क्या है ताल्लुक़ को समझ सकते हैं और माशी मसाइल का हल निकालने में और वजूहात को तलाश करने में ये इल्म क्या है बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। लिहाजा इल्म माशियात में इल्म शुमारियत का दखल क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाज़मी है। चाहे वो कीमतों से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो आबादी का मसला हो, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो या आमदनी के ताल्लुक़ से क्या है कोई रिपोर्ट वगैरह पेश करनी हो या ख़वानदगी वगैरह है। तो इस तरीक़े के जितने भी मालूमात वगैरह रहेंगे या इफ़रात ज़र्ब वगैरह जैसे मसला रहेगा, तो इन सब के पीछे जो सदेबाब वजूहात पाए गए हैं उनका जानना और साथ ही साथ क्या है फ्यूचर में हम किस तरीक़े के रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं, इसके लिए भी क्या है यहाँ पर ये इल्म शुमारियात क्या है अपने आदाद व शुमार के ज़रिए से इल्म माशियात में पॉलिसियों को तदवीन करने में माहिर माशियात को क्या है बहुत भरपूर हद तक क्या है मदद क्या है फ़राहम करती है। तो इस तरीके से इल्म माशियात और इल्म शुमारियात दोनों क्या है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये आपस में मिलकर ही क्या है बेहतर तरीके से क्या है माशी मसाइल को हल करने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक क्या है यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ क्या है फिर हाजिर होती हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।